اور ان کے سامنے ذاکر البیت، ان کے بعد ذاکر البیت شوال حیدر نقوی وہ خطاب فرمائیں گے محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ خاندان تطہیر کے باواز بلند صلوات۔ ہمارے دیگر باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ تمام فرزندان اسلام اللہ رب العزت کا نام بلند و بالا ہے، بآواز بلند دیجیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ ٹوٹی ہوئی آسوں کو جوڑنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الامیش المکی المدنی الہاشمی القرشی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین المعصومین المہدیین المظلومین بلعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین الحاسدین الغاصبین المشرکین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک مل کے بآواز بلند صلوات۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ آپ کے اور میری آٹھویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا، اسے چاہیے ہماری ذات کے اوپر بلند درود پڑھا کرے۔ اچھا، بڑے خوبصورت چہرے علم دوست شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اگر زحمت محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ تھوڑا ماحول بن جائے گا۔ کوشش کریں درود تلاوت کرتے آئے اور آگے آتے جائیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، احسان ہے آپ لوگوں کا مجھ پہ۔ اجازت ہے کہ گفتگو شروع کی جائے۔ قابل صد احترام میرے بزرگ، ارباب عقل و دانش، صاحبان علم و معرفت، برادران ایمان اور میری قوم کا روشن مستقبل میرے سامنے ہے، ادھر ادھر کی بات کرنے کا قائل نہیں۔ پہلی بات کروں گا، اگر پہلی بات پسند آ گئی، پہلی بات تو دعا مل گئی تو انشاءاللہ سفر جو اگلا ہوگا وہ بہتر گزر جائے گا، اچھا گزر جائے گا۔ تو بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی ٹھہراؤ کے، بغیر کسی تمہید کے پہلا جملہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حمد ہے اس خدا کی۔ حمد ہے، کیا ہے؟ حمد ہے اس خدا کی۔ کس خدا کی بھائی جان؟ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں وارث وہ دیے ہیں کہ جن کے نام ہم گھر میں ماؤں بہنوں کے درمیان لے سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، میری طرف دیکھ بھائی، کہ خدا نے ہمیں وارث وہ عطا کیے ہیں جن کا ذکر ہم گھر میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک کر دے، پہلے کی طرح ٹھیک کر دے۔ اور کیسے ہی وارث ہیں، اور یہ کائنات کے پہلے وارث ہیں جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ شاباش، یہی وہ چیز چاہیے تھی جو مجھے مل چکی ہے۔ کائنات کے وہ پہلے وارث جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ تو مشکل تو نہیں ہو رہی؟
ना भाईजान, हमारी माओ ने हमें मजलिस अज़ा में बिठा के बताया है कि बेटा दुनिया में कोई मुश्किल कोई ऐसी है ही नहीं कि जिसका मुश्किल कुछ आके पास हाल ना हो। आप जिंदा सलामत रहे, आप जिंदा। मैं तो यही ढूंढ रहा था ना, मेरे तो दिल में है। मैं चाहता हूँ कि 2-4 मोती जो आपके मुकद्दर के हैं वो निकल जाएं, जो आपके नसीब की 2-4 बातें मेरी तरफ देख बेटा, है इजाजत क्यों कर दूं। हज़रत मोहतरम आप हज़रात के सामने, आपके मुकद्दस समातों के सामने कलाम इलाही के सूरह मुबारक नहल से एक आयत आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तो जितनी ये आयत मुकद्दस है, जितनी ये आयत प्यारी है, इसका तर्जुमा भी उतना ही प्यारा है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून, कौन कह रहा है? अल्लाह। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून, और वो अल्लाह ही तो है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम, कि जिसने तुम्हारा एहराज किया तुम्हारी माओं के शिकमों से। बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी कि वो अल्लाह ही तो है कि जिसने तुम्हारा एहराज किया तुम्हारी माओं के शिकमों से, और इस कफियत से किया, इस अंदाज से किया, इस तरीके से किया, इस तरतीब से किया, ला तालमूना शैया, कि तुम कुछ नहीं जानते थे। ओए होए होए होए, इस अंदाज से किया। आप जिंदा सलामत रहिए। पाक सैयदा आपसे राजी हो। किस तरह तारुफ किया, किस तरह इंसान का तारुफ करवाया है कि ये इंसान वो है कि जिसे अल्लाह की जात ने इनकी माओं के शिकमों से इस अंदाज से पैदा किया है कि ये कुछ भी नहीं जानती थी। तो कुरान के मुताबिक, खुदा के मुताबिक, अल कुरान के मुताबिक इंसान फितरी तौर पे जाहिल पैदा हुआ है। इंसान आलम पैदा नहीं हुआ, इंसान जाहिल पैदा हुआ। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, इसकी सबब क्या है, मसलहत क्या है? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मोहताज हिदायत, जो हम हैं। एक होते हैं वो जो हिदायत वाले हैं। बात पहुंच रही है हम? अगर पहुंच रही है तो फिर मेरे हक में दुआ करनी है। मुझे दाद भी चाहिए और मुझे दुआ भी चाहिए। अपने घर में खड़ा हूं, बानी मजलिस की हैसियत है, आपके चेहरों की ज़ियारत होगी, लिहाजा जो मकसद है उस मकसद की तरफ बढ़ते हैं। एक है मोहताज हिदायत, जा भाई। एक वो है जो हिदायत वाले हैं, उन्हें हिदायत दे के भेजा, उन्हें इल्म दे के भेजा। हमें बगैर हिदायत के भेजा, हमें बगैर इल्म के भेजा। वजह क्या है? खुदा ने कहा वो है इल्म वाले, तुम हो बगैर इल्म के। वो है हिदायत वाले, तुम हो मोहताज हिदायत। अगर तुम्हें भी इल्म दे के भेज देता, कल को तुम भी उन्हें अपने जैसा समझ लेते। शाबाश, आप जिंदा सलामत रहिए। आप जिंदा सलामत रहिए। क्या माहौल बन गया, क्या बात समझ आ रही है भाई? बुजुर्ग मेरे बैठे, आप जिंदा सलामत रहिए। पाक सैयदा आपसे राजी हूँ। बुजुर्गों, मैं राजी बैठा हूँ जी, झोली उठा के आपके लिए दुआ करूँ कि तुम्हें इसलिए जाहल पैदा किया कि ताकि तुम खुद को उन जैसा न समझ लो, लेकिन तुम्हें जाहल पैदा किया है, रखा नहीं है। ओए होए होए, क्यों नहीं रखा? आए कुरान की आयत को आगे पढ़ते हैं। वजाल लाकुमुस्समा, लेकिन तुम्हें सुनने के लिए कान दिया। पीछे रह गया यार, पीछे रह गया। मैं शरह कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, और कुरान भी उस दौर में पढ़ रहा हूँ जिस दौर में काफी है। आप सलामत रहिए। वजाल लाकुमुस्समा, तुम्हें सुनने के लिए कान दिया, वल अबसारा, और आंखें दी, वल आफिदता, और दिल दिया। ओए होए, जिसके पास दिल है वो तो बोले। सुनने के लिए कान दिए ताकि वो सुन जो हक है, देखने के लिए आंखें दी वो देख जो हक है, सोचने के लिए दिल दिया, और ये दिल को कहा है आफिदता। इसे दिल भी कहते हैं, इसे कल्ब भी कहते हैं, इसे हार्ट भी कहते हैं, इसे सदर भी कहते हैं, लेकिन कुरान में सिर्फ आफिदता है, सिर्फ आफिदता है, सिर्फ आफिदता है। मेरा खालिक ये आफिदता क्यों है? फरमाया दिल दरिंदे के पास भी है, दिल परिंदे के पास भी है, दिल जानवर के पास भी है, दिल हैवान के पास भी है, लेकिन आफिदता सिर्फ इंसान के पास है। मैंने कहा मेरा अल्लाह सबको दिल दिया, हमें आफिदता क्यों दिया? खालिक की आवाज ही आफिदता इसलिए दिया क्योंकि इसमें ये हासियत है कि ये हक और बातिल को पहचानता है। आए आए, आप जिंदा सलामत रहे। कोई देर लगती है? अब इजाजत है जिससे आगे बढ़े। आप जिंदा सलामत रहे। क्या बात है जी। अच्छा, इस जिक्र में बोलने के बड़े फायदे हैं, बड़े सवाब हैं इस जिक्र में बोलने के। एक बंदे ने सुलेमान फारसी से पूछा था, सलमान मोहम्मदी 450 साल का जवान,
नहीं पहुंचे वहां पे। सीने पे मिन्नत अहले बैत का तमगा। किसी ने पूछा सलमान बंदे को कितना बोलना चाहिए और कितना खामोश रहना चाहिए? सुलेमान मोहम्मदी ने कहा बात दुनिया की आ जाए तो बेहतर है खामोश रहो, लेकिन बात अली की आ जाए फिर हक बनता है चुप ही ना हो। हाय आप जिंदा सलामत रहे, आज जाओ मिल के हैदरी। जब बात अली की आ जाए फिर हक बनता है वो खामोशी रहे। दिल दिया ताकि वो सोचो जो हक है और इसका बदला क्या मांग रहे हैं। और मैं कुरान कह रहा तुमसे कि तुम्हें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सोचने के लिए दिल दिया, बदले में कीमत नहीं मांगी, डॉलर नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, टैक्स नहीं मांगा, बिजली नहीं मांगी। खुदा कह रहे हर चीज का इस्तेमाल कर, हर नेमत से फायदा ले, लेकिन बदले में मेरा शुक्रिया अदा कर, बदले में मेरा शुक्रिया अदा कर, मेरी नेमतों का इस्तेमाल कर, मेरा शुक्रिया अदा कर, सांस ले मेरा शुक्रिया अदा कर, ग़ज़ा को खा मेरा शुक्रिया अदा कर, आंखों से देख मेरा शुक्रिया अदा कर। और सिर्फ तुम्हें नहीं कहा शुक्रिया अदा कर, आदम से कहा बेशक मस्जूद मलाइका है लेकिन शुक्रिया अदा कर, इदरीस से कहा बेशक बड़ा प्रोफेसर है लेकिन शुक्रिया अदा कर, नूह से कहा भले तूफान से सफीना निकाल के ले आएगा लेकिन मेरा शुक्रिया अदा कर, इब्राहिम से कहा बेशक 3 इम्तिहान मेरे राह पे दीजिए हैं लेकिन मेरा शुक्रिया अदा कर, मूसा से कहा मेरा शुक्रिया अदा कर, ईसा से कहा मेरा शुक्रिया अदा कर। कितना सलाम करे शिया इस हालत के कुरान को कि जहां खुदा हर एक से कह रहा है मेरा शुक्रिया अदा कर, मेरा शुक्रिया अदा कर, मेरा शुक्रिया अदा कर। इसी कुरान के सूरह तहर में जब एक घर से रोटियां पक के वहां पे गई है, यही खुदा उसी तखलीक के बारे में कह रहे वमा काना सायाकुम मशकूरा, बतूल माए खुदा हो के तेरा शुक्रिया अदा करता। हाय हाय जीते रहे जीते रहे जीते रहे, आप जिए आप जिए आप जिए सरकार, आप जिए, जिंदगियां हो आपकी जिंदगी। सरकार नबियों से कह रहा है मेरा शुक्रिया अदा कर, खुद बतूल के दरवाजे पे कह रहा है मैं खुदा हो के। भाईजान मैं को कुरान से बात नहीं, जिसके लिए कुरान काफी है उसके लिए तो ये जुमला ही काफी है। और दीन किसी कॉफी शॉप पे नहीं मिलता। वजअल लकुम समा, सुनने के लिए कान दी, वल अबसार, देखने के लिए आंखें दी, अफिदता और दिल दिया, बदले में मांगे सिर्फ शुक्रिया, खुद तुमसे शुक्रिया, आगे बतूल का शुक्रिया। हाय 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 हाय, जो अरबाब दानिश पीछे रह गए मैं उन्हें कैसे साथ मिलाऊं। हजरत ये जो इल्म है ना ये किताबों से नहीं आता, ये अदब से आता है। और जो खतीब पढ़ता है ना, खतीब किताब से नहीं पढ़ता, खतीब आंख से पढ़ता है। बिस्मिल्लाह सैयद, इजाजत है कि मैं अपने इश्क की नमाज को जारी रखूं। समझ रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, बात भूले तो नहीं। खुद कायनात से कह रहा है शुक्र, लेकिन खुद शुक्रिया अदा कर किसका? एक घर का, एक दहलीज का शुक्रिया अदा कर। आए मैं इसी मौजूद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक आयत और पढ़ को इजाजत है। कौन कहता है शिया कुरान नहीं पढ़ते, इजाजत है क्या कहा फरिश्तों ने कि आए मरियम खुदा ने आपको चुन लिया, फिर पाक किया, पाक करने के बाद क्या किया, फिर चुना और औरतों में मुस्तफा बनाया। नहीं समझ आई यार, नहीं समझ आई यार, कुरान नहीं समझ आ रहा आप लोगों को कि हमने आपको चुना, फिर पाक किया, फिर चुना, फिर औरतों में मुस्तफा बनाया। हम पूछ नहीं सकते खालिक 2 दफा क्यों चुना, एक ही दफा में चुन लेते। खालिक की आवाज आई नहीं 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 नहीं, समझा नहीं। इन्नल्लाह इस्तफा का, पहले मरियम को औरतों में से चुना, वत्तखरा का, फिर पाक किया, बतूल किया, पहले औरतों में से चुना, फिर बतूलों में से चुना। शाबाश। हाय हाय हजरा, मेरी थकावट उतर गई है, आप लोगों का पता नहीं, जितनी मेरे थकावट थी ना मेरी उतर गई है। पहले चुना औरतों में से, फिर चुना बतूलों में से। बतूल नाम नहीं है, अरबाब दानिश तशरीफ फरमा है हुजूर, बतूल लक़ब नहीं है, बतूल नाम नहीं है, बतूल मर्तबा है, बतूल मनसब है, बतूल मंजिलत है। किसे कहते हैं बतूल? कर दूं तर्जुमा बतूल का?
کہ شریعت میں جس بیوی کو مصلے پہ جانے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. ہوئے 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 چلے 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 اگر ہاتھ یہیں پہ رہ گئے ہیں میں اسی لفظ بطول کا دوسرا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. اب ذرا اپنے اسماعتوں کو اپنے اذہان کو بلند رکھنا. آئے تحلیل سجدہ پہ ایک انوکھا سجدہ کرتے ہیں. خالق سے پوچھا گیا بطول کہتے کسے ہیں, بطول کہتے کسے ہیں؟ فرمایا بطول اسے کہتے ہیں جو مجھ سے تعلق توڑے نہ, کسی اور سے تعلق جوڑے نہ. مریم کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ, اس نے مخلوق میں کسی سے شادی نہیں کی کیونکہ تھی مریم, تھی بطول, اس سے تعلق توڑ نہیں سکتی تھی, یہاں سے تعلق جوڑ نہیں سکتی تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا سیدہ کیا ہے جو علی کی زوجہ بھی ہے اور بطول بھی ہے. ہوئے 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 جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے. آپ زندہ و سلامت رہے حضور. کیا معیار سماعت ہے آپ کا بھائی کہ جو علی کی زوجہ ہوگی پھر بھی بطول ہے. شرط تھی نا خالق سے رشتہ ٹوٹے نا, مخلوق کے ساتھ جڑے نا, اور یہ زوجہ علی کی ہے پھر بھی بطول ہے. آئیے اسی واقعے کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں, چاچا صاحب دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. میرا اللہ بطول صغرا کو, پہلی بطول کو, مریم کو بیٹا دیا بغیر شوہر کے. شادی کیوں نہیں کی؟ کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو آپ کے دل میں اترے؟ شادی کیوں نہیں کی؟ جی معصوم نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, اگر یہ سوال سمجھ میں آ گیا نا مراج ہو جائے گی. آپ نے تو کہہ دیا معصوم نہیں تھا, مجھے صرف اتنا بتا دے معصوم بناتا کون ہے؟ ہائے ہوئے 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 ہوئے. آپ اور میں تو کہتے ہیں کہ شادی اس لیے نہیں ہوئی, معصوم نہیں تھا. او خدا ہی تو معصوم بناتا ہے, تو ارباب دانش خدا نے دوسرا معصوم کیوں نہیں بنایا؟ اور یہ دوسرا معصوم نہ بنانے کی دو نقصان ہوئے ہیں. دو نقصان ہوئے ہیں. پہلا نقصان یہ ہوا کہ فطرت کا قانون بدل گیا, بغیر شادی کے بیٹا دینا پڑا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آج ایک عیسائی مذہب وجود میں آ گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی, شادی کے بغیر بیٹا ہوا, فطرت کا قانون ٹوٹا, عیسائیوں نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا. تو اگر یہ ایک معصوم بنا کے اس سے شادی کی جاتی تو آج یہ دونوں اعتراض ہوتے ہی, دونوں اعتراض پیدا نہیں ہوتے. بہتر نہیں تھا ایک معصوم حلق ہوتا, اس سے کر دیتے شادی, شادی کے بعد ہو جاتے عیسیٰ, آج فطرت کے قانون بھی سلامت رہتے. آج عیسائی مذہب کا وجود بھی نہ ہوتا. تو آئے خالق سے سوال کرتے ہیں میرے خالق دوسرا معصوم کیوں نہیں, دوسرا معصوم کیوں نہیں, دوسرا معصوم کیوں نہیں؟ آج جب نہیں کہ خالق کی آواز آئی, دیکھا تجھے نہیں پتا مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول, مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول. اگر ایک معصوم اور بناتا, مریم کی کر دیتا اس سے شادی, کل کو وہ معصوم کہہ سکتا تھا میں بطول کا حاکم ہوں, میں بطول کا شوہر ہوں. اس طرح وہ ہو جاتا علی کے برابر. خدا نے کہا دو نقصان برداشت ہو جائیں گے, علی کی برابری نہیں. ہوئے 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 ہوئے. آپ زندہ و سلامت رہے. خدا نے کہا مجھے یہ دونوں نقصان برداشت ہے, مجھے علی کی برابری برداشت نہیں. اب مجھے نہیں پتا جملے پہ کون بولے گا اور کون خاموش رہے گا. اور جو اللہ علی کی برابری نبیوں میں برداشت نہیں کر رہا, مکے کے کمیوں میں کیسے کرے گا؟ ہائے 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 ہائے. آپ زندہ و سلامت رہے. آپ زندہ و سلامت رہے. حضور یہ بھی خوشامد والی رات نہیں ہے. خوشامد میں نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ 10 منٹ سید المرسلین فی العالمین پر بآواز بلند صلوات. امیر المومنین و آل یاسین فی العالمین پر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کون ہے بطول؟ کون ہے بطول جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتی ہو؟ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتی ہو. ایک مریم تھی نا بطول, اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا. کیوں نکال دیا گیا تھا؟ خالق کی آواز آئی نا, نکل جا, عبادت خانہ ہے, بچہ خانہ نہیں.
होए 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 होए, ये इबादत खाना है, बच्चा खाना नहीं। और एक बीबी को खुद बुला रहा है, आ मेरे घर में आ, मेरे घर में आ। रजब याद है ना, किसी बंदे को भूला तो नहीं? क्योंकि रसूल ने पूछा था ना कब मनाना है, खालक की आवाज आई रजब में, मालिक रजब में कब? रसूल की अल्लाह की आवाज आई मेरे हबीब रजब है, यहाँ पे मना लूं तो मेरा है, वहां पे मना ले तो तेरा है। अपने घर से चलिए शहजादी। लाहौर के सेमिनार में हमारे 15 शीजा उलमा ने इसी एक बात को मौजूद सुहन बना के ये जुमला जारी रखा, हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया। 1 घंटे के बाद जब 15 शीजा उलमा का ये जुमला खत्म हुआ कि हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया, 16वें नंबर पे बैठे हुए एक अहले सुन्नत आलम के पास माइक आया। उसने कहा ओ शीयो, मुझे 15 मिनट 15 उलमा को मैंने ये कहते सुना है हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया। उसने कहा तुम शुक्र अदा करो अबू तालिब की फौजा का जो चल के अल्लाह के घर चली गई। अगर वो चल के अल्लाह के घर न जाती, अल्लाह का घर चल के अबू तालिब की हवेली में आ जाती। ओए 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 भाई बोल दो अली हक, अली हक। आप जिंदा सुना मेरे, आप जिंदा सुना, मैं क्या कहने आपकी समातों के, आप जिंदा सुना मेरे। बहुत शुक्रिया बुजुर्गों, बुजुर्गों दुआ होगी मेरे लिए। अब शहजादी कोई बंदा मुझे बताए कि ताला खोल के गई है, ना जी ना, दीवार फटी, मादरे अमीरुल मोमिनीन अंदर, दीवार दोबारा मिल गई, 13 गुजरी, 14 गुजरी, 15 गुजरी, 16 आ गई, अंदर है मादरे अमीरुल मोमिनीन। गांव के मरी में मैं बैठा हूँ, मेरा इलाका है, मुझे जहाँ के दस्तूरों का पता है। जहाँ 3 दिन एक औरत गायब रहे, वबाल आ जाता है, तरह तरह की बातें बन जाती हैं, कयामत उठ जाती है। जी 3 दिन हो गए एक औरत घर में नहीं आई, 3 दिन हो गए एक औरत घर में नहीं आई। यही हाल मक्का में था, 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गए। किसी आम घर की बहू नहीं बुजुर्गो, जैसे मक्का की बीवी है, मतलब ये काबा की बीवी है, अपने घर से निकली है, अल्लाह के घर में गई है, 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गए हैं, न दरवाजा खुल रहा है, न दीवार दोबारा फट रही है, न बीबी बाहर आ रही है, न कोई अंदर जा रहा है, न कोई बाहर आ रहा है। पता कैसे चले अंदर हो क्या रहा है? लोगों के अंदर की बेचैनी बढ़ी, इकट्ठे होकर अबू तालिब के दरवाजे पे आए। अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक दे के कहते हो रईस मक्का, ओ मतलब लीजिए काबा, तेरी जोजा को हमने शहर से निकलते हुए देखा, तेरी जोजा अल्लाह के घर के करीब गई है, जरा पता तो करे अंदर हो क्या रहा है। आपकी जोजा अंदर करके रही है। अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा जाहिलो, मुझे पूछने क्यों आए हो? या बुलाने वाले को पता या जाने वाले को? आए आप जिंदा सुना मतलब, या बुलाने वाली को पता या जाने वाली को पता। अब तो अबू तालिब ने दरवाजा बंद कर दिया, अब अंदर की बेचैनी मजीद बढ़ी। पहले तो उम्मीद थी ना अभी आपको बंदा मेंबर पे चिट लेके आ जाए और कह दिया अल्लाह साहब ये बताएं, उम्मीद पे आ रहा है ना कि मैं बता दूंगा। अगर मैं ही कह दूं कि मुझे नहीं आता फिर परेशान तो होगा ना। कि पहले तो उम्मीद थी कि ये बंदा बता देगा, अब जाहिर मेरे से किसी बड़े के पास जाएगा। और सरकार उस वक्त अबू तालिब से बड़ा बंदा मक्के में था कोई नहीं। अब परेशान हुए, अब हुआ क्या, सबको अपने अपने खुदा याद आए। कोई लात के पास गया, कोई मंदाफ के पास गया, कोई उज़्ज़ा के पास गया, कोई कंकर के पास गया, कोई शंकर के पास गया। हर एक से पूछा यार तूने देखा अबू तालिब की जोजा निकली या नहीं निकली, तूने देखा अबू तालिब की जोजा बाहर आई या नहीं गई। तो एक दूसरे से पूछते, सबने यही कहा हमने तो देखा नहीं है, हमें तो पता नहीं है, हमने तो निकलती हुई देखी नहीं, हाँ जाते हुए देखा है, आते हुए देखा नहीं। अब सर जोड़ के बैठ गए, अल्लाह जाने मौजूदा क्या है, अल्लाह जाने राज क्या है, अल्लाह जाने मसलहत क्या है, अल्लाह जाने हो क्या रहा है। आखिर इन्होंने फैसला किया, मक्के के सरदार इकट्ठे हुए, इन्होंने इकट्ठे जिरका बुला के एक बच्चा मुतफक्का फैसला किया। इन्होंने कहा हम अल्लाह के घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक देंगे, हम पता करेंगे अंदर हो क्या रहा है। जिंदगी में पहली दफा बंदे इकट्ठे होकर अल्लाह के घर के दरवाजे के करीब आए। जिंदगी में पहली बार बंदों ने अल्लाह के घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। उस वक्त खुदा की आवाज आई, उठ अली की माँ मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ अली की माँ मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी की आवाज आई, मेरे अल्लाह तूने दीवार से बुलाया था वापस दरवाजे से क्यों भेज रहा है? आवाज आई, फातिमा आज जिंदगी में पहली बार इन्होंने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, जल्दी कर दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा।
दुनिया को बताऊं, जब मेरे दरवाजे पे दस्तक दोगे, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आप जिंदा सलामत रहे। नई दिल वाला मिलके इबादत कर दो हैदरी, अंदर से अली नहीं आएगा, अंदर से जली आएगा। खुद कायनात से शुक्रिया मांगा, बात भूले तो नहीं, खुद कायनात से शुक्रिया मांगा और फिर खुद आगे कह रहा है दरवाजे के ऊपर हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जब खुदा ने सोचा कि जमीन पे अपना खलीफा बनाऊंगा, किसे बनाएगा मालिक? फरमाया इंसान को बनाऊंगा। अपनी फजीलत तो सुन सकते हो ना, मालिक इंसान को बनाएगा जी, इंसान को बनाएगा, हमें बना दे। नहीं पहुंचे नहीं यार, खालिक तूने खलीफा बनाना है, फरिश्ते कह रहे हैं हमें बना दे। खालिक ने कहा तुम्हें फिर बना दो अपना खलीफा, बना देता हूँ। हम बेउनी बेअस्माए हौलाए, ये चार नाम पड़े हैं, ये नाम मुझे बताओ, खिलाफत तुम ले जाओ। खुदा ने इनकार तो नहीं ना किया, खुदा तो दरवाजा बंद ही नहीं ना करता। खुदा ने कहा तुम्हें चाहिए खिलाफत, आखिरी टुकड़ा मेरे खुदा ने कहा, मेरे हिस्से की ड्यूटी हो गई, तुम्हें चाहिए खिलाफत। अच्छा अरबाब दानिश तशरीफ फरमाए, मेरे जुमले की तायद करेंगे। भाई जब मोटरसाइकिल का हाथ वो देखता है जिसके पास साइकिल हो, गाड़ी वाला बंदा कभी भी मोटरसाइकिल का हाथ नहीं देखेगा। तो जन्नत में तो फरिश्ते पहले से रहते हैं, इसका मतलब जन्नत में रहते हुए खिलाफत मांग रहे हैं, इसका मतलब खिलाफत जन्नत से अहम चीज का नाम है। अब खुदा भी क्या है, खुदा ने भी इनकार नहीं किया। खुदा ने कहा बेउनी बेअस्माए हौलाए, जी चंद नाम मुझे बता दो और खिलाफत तुम ले जाओ। इसका मतलब कुरान के मुताबिक कुछ नाम ऐसे हैं जो आदम से पहले मौजूद थे। ये चंद नाम बताओ, खिलाफत ले जाओ। अब फरिश्ते बैठे तुम मन को खामोश, क्योंकि फरिश्ते के पास इल्म होता है लेकिन वो उस इल्म को बढ़ा नहीं सकता। इंसान के पास इल्म है, इंसान के पास रिसर्च करने की ताकत है। ये एक चीज आप मोबाइल में फीड कर देते हैं लिख के, वो 100 साल बाद भी खोलेंगे तो वो वैसी होगी। ये फरिश्ते का दिमाग है। बच्चे को एक चीज पढ़ाओ वो अगली खुद सोचेगा, ये है इंसान का दिमाग। लिहाजा फरिश्ता क्या ढूंढ रहा है? चंद इस्मा, अम्बियोनी बेअस्माए हौलाए। समझ आ रही मेरी गुजारिश की? परेशान तो नहीं होगी? तो हम होते नहीं परेशान, अली वारस है। तो जिसके हाथ का वारस अली है इजाजत जी, उन अस्मा को ढूंढा जाए। तो हौलाए है इसम, ग्रामर में हम है इसका जमीर, यानी एक लफ्ज है हम। इस हम को फरिश्तों ने बता दिया तो इंसान नहीं बनेगा, खिलाफत फरिश्तों को मिल जाएगी। क्या ढूंढ रहे हैं फरिश्ते? हम ढूंढ रहे हैं। तो अब दे, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, सैयद बैठे हैं, सदात बैठे हैं, गैर सदात बैठे हैं, छोटे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, मेरे मदद की जितने बंदे नुमाइंदगी कर रहे हैं, दे मुझे इजाजत, मैं तुम्हें बताऊं फरिश्तों ने हम कहां पे ढूंढा। खामोश बैठे नहीं रहता, मेरे तो दिल में है, मेरे तो दिल में है, मुझे तो पता है। हाथ खोल मेरी जान, हाथ खोल के बैठ। ये कोई उम्र है तकने की? मेरे तो दिल में है, मैं तो जानता हूं, मैं तो चाहता हूं कि ये तोहफा तुम तक पहुंच जाए, ये तोहफा तुम वसूल कर दो। तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं, मुझे तो पता है ये इन्होंने कहां पे ढूंढा। आओ तुम्हें बताऊं, कौन फयकून का मेला लगा हुआ था, फरिश्ते हम ढूंढ रहे थे। आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, लेकिन फरिश्ते क्या है? हम ढूंढ रहे हैं। आदम और हवा के दरमियान में हजारों मील का फासला रहे हैं। आदम की तौबा की कबूलियत का इंतजार कर रहा था, लेकिन फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर बन के इल्म बांट रहा है, लेकिन फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। नूह का कश्ती तूफान में फंस चुकी है, लेकिन फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। इब्राहिम की आग गुलजार बन रही है, लेकिन फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल रही है, फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। साले के लिए पहाड़ से ऊँटनी निकल रही है, फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। यूनुस मछली के पेट में जिंदा है, फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। मूसा के लिए नील में 12 के 12 रास्ते बन रहे हैं, लेकिन फरिश्ते क्या है? हम ढूंढ रहे हैं। याकूब की आंखों को बिनाई मिल रही है, फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। यूसुफ कुएं में बच रहा है, फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। सुलेमान कायनात पे शाही कर रहा है, फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। दाऊद अली का नाम लेके लोहे को मोम कर रहा है, लेकिन फरिश्ते हम ढूंढ रहे हैं। मरियम को मनसबे बतूल
مل رہا ہے لیکن فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. عیسیٰ تختے سے تخت پہ آ رہا ہے لیکن فرشتے کیا ہے؟ فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پھر یہی فرشتے دیکھ رہے ہیں 30 عام الفیل کی آخری رات ہے. انہی کی پلکوں پہ رکے ہوئے نور کے پانی نے ساری رات شبنم بن کے کعبہ کے درو دیوار پہ غسل دیا لیکن تلاش ہم کی ہے. پھر انہوں نے دیکھا اسی رات کے اندر ایک بی بی اللہ کے گھر میں مہمان بنی, انہی نے غلامی کی لیکن تلاش ہم کی ہے. پھر دیکھا مصطفیٰ لینے آ گئے, تلاش ہم کی ہے. نام مصطفیٰ نے رکھا, تلاش ہم کی ہے. پھر فرشتوں نے دیکھا جولے میں اجدر کے 2 حصے ہو گئے لیکن انہیں تلاش ہم کی ہے. ابو جہل کا منہ پھر گیا لیکن انہیں تلاش ہم کی ہے. دافتے ذوالعشیر علی نے محمد کی نصرت کا وعدہ کر دیا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. علی خطرے کے بستر پہ مطمئن ہو کے سو گیا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. علی نے امانتیں واپس کی, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. علی بدر کا فاتح بنا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. عہد میں علی کے لیے ذوالفقار آئے, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. خندق میں علی کل ایمان بنا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. عمر ابن عبدالغد مارا گیا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. مرحب کا سر کٹا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. خیبر کا در اکڑا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پھر فرشتوں نے دیکھا آسمان شادی حال بنا, جب ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پھر دیکھا دلہن بطول بنی, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. نکاح خان اللہ بنا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پھر اسی فرشتوں نے دیکھا اسی گھر کی دہلیز میں 15 رمضان کو حسن پہلا قرآن بن کے آیا, انہیں تلاش ہم کی ہے. اسی دہلیز میں 3 شعبان کو حسین دوسرا قرآن بن کے نازل ہوا, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اسی گھر کے سامنے فرشتوں نے 16,000 سال تک ہم ڈھونڈنے میں گزار دیے. 16,000 سال برس گئے, گزر گئے, فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. 16,000 سال کے عرصے میں فرشتے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. پھر اسی دہلیز کے اندر اسی دہلیز پہ فرشتوں نے ایک چیز دیکھی, یہ وہ دہلیز ہے جہاں پہ ملائکہ جھکتے ہیں, محمد رکتے ہیں. ملائکہ جھکتے ہیں, محمد رکتے ہیں. سلمان اسی دہلیز پہ سجدہ کر کے عبادت کی قبولیت کی سند لیتے ہیں. پھر فرشتوں نے اسی دہلیز کے اندر ایک چادر دیکھی, اس چادر کے نیچے فرشتوں نے 5 نور اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھے. اب خالق نے فرشتوں کو بلایا, کہا ہم ڈھونڈ رہے ہو, تمہیں خوب بتاؤں. کہتے خالق 16,000 سال کا انتظار اب ختم کر دے, ہمیں اب خوب بتا دے. خالق کی آواز آئی, جو خوب تمہیں انسانوں سے افضل کر دیتی اس خوب کا نام خوب فاطمہ. ناظرین آپ چک بولو علی حق, علی حق. آپ زندہ و سلامت رہے, آپ زندہ و سلامت رہے. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. جو ہم فرشتوں کو خلافت دلا دیں اس قوم کا نام ہے قوم فاطمہ, اور یہی وجہ ہے کہ یہ گھر وہاں پہ فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو جس کے نام سے یہ گھر پہچانا جاتا تھا اس کی بیٹیوں کی ہاتھوں میں رسیاں ہو گئی. ایک حصہ کمپلیٹ نوکری کا, دوسرا حصہ زیادہ زحمت نہیں. انسان جب کوئی پرندہ رکھتا ہے نا, دنیا داری پرندہ, تو اسے مہینے کے لیے, 1.5 ماہ کے لیے, 2 ماہ کے لیے پنجرے میں رکھتا ہے. اسے دانہ بھی ڈالتا ہے, خوراک بھی ڈالتا ہے, پانی بھی ڈالتا ہے, اس کی پرورش بھی کرتا ہے, اس کا دھیان بھی رکھتا ہے. تو سمجھدار بندے کہتے ہیں اب 2 مہینے گزر گئے تو یہ انہیں خریدے ہوئے چائی ہے اس دین کی علی کی بیٹیوں نے. اچھا کبھی اللہ, میں کر چکا ہوں مصیبت شروع. ایک بھی بندہ مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جسے میں نے فضائل میں تنگ کیا ہو, لیکن مصائب ہے اس کے سننے کا بھی آداب ہوتے ہیں اور پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. یہ جڑے ہوئے ہاتھ, ماتمی سمجھو, حسین کا نوکر سمجھو, عزادار سمجھو, مہمان سمجھو. جتنی دیر میں اس گھر کی غربت پڑھو, یہ سوچ کے دائیں بائیں دیکھنا کہ کوئی تمہیں شام سے دیکھ رہا. میرا علاقہ ہے, میں یہاں کی روایتوں سے بھی واقف ہوں, یہاں کے قانونوں سے بھی واقف ہوں, یہاں کے دستوروں سے بھی واقف ہوں. میرے علاقے میں اگر کوئی بندہ مر جائے اور پردیس میں اس کی بیٹی رہتی ہو, چاچا جی بندہ اسے فون کر کے یہ نہیں بتاتا کہ تیرا بابا مر گیا ہے. میرے علاقے کا دستور یہ ہے, بندے فون کر کے کہتے ہیں تیرے بابے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
तेरे बाबे को अस्पताल में दाखिल करवाया है। मेरा बेटा जितनी जल्दी हो सकता है पूरे बाबे के घर पहुंच। और जो बेटी होती है ना उसे अपने हाथों की रखी हुई चीजें भूल जाती है। जब वापस आती है ना अपने बाप के घर में, मैं अपने इलाके का दस्तूर पढ़ रहा हूं, अगर तुमने यही सुन लिया तो मुझे मसाइब की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। मैं तो एक दर्द पढ़ रहा हूँ मुआशरे का। भाईजान जितने बुजुर्ग बैठे हैं, खुदा करे मैं समझा जाऊँ, खुदा करे तू समझ जाए। जब वो बेटी आती है ना अपनी गली में चारपाइयों पे बैठे हुए लोगों का रश देखती है, बुजुर्ग रश देख के वो समझ जाती है मेरा मेका मान उजड़ गया। अजरों मिलल्ला। मैंने अपने इलाके में कब्रिस्तानों के अंदर लोगों को जनाजे रख के इंतजार करते हुए देखा। जी हो गया जनाजा, जी हो गया, दफना क्यों नहीं रहे मैयत को? कहते हैं जी वो मरने वाले की बेटी दूर परदेश में रहती है, अभी वो नहीं पहुंची, थोड़ी सी दूर है, फोन पे राब्ता हुआ है, कुछ देर में वो पहुंच जाएगी, अपने बाबे की आखिरी दफा शक्ल देख लेगी, हम उसके बाद मैयत को दफना देंगे। फिर जब वो बेटी आती है कब्रिस्तान में, टोलियों की शक्लों में लोग इधर उधर चले जाते हैं। क्यों जा रहे हो? कहते रास्ता दो, गरीब की बेटी आ रही है। तेरा तो पत्थर का दिल तो नहीं है ना? रास्ता दो, शरीफ की बेटी आ रही है। लोग कत्लों की दुश्मनियां भूल जाते हैं, मरने वाली की बेटी के सर के ऊपर हाथ रख के कहते बेटा परेशान नहीं हो, दुश्मनी तेरे बाप के साथ थी, तेरा बाप मर गया है, बेटियां सबकी सांझी होती है, तू हमारी भी बेटी है, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़े मुझे अपना बाप समझ लेना, मेरे घर में चली आना। अरमान खा गया शियो इस बात का, दुनिया इतराज करती है, रोते क्यों हो, मातम क्यों करते हो, बेटियों को लेकर जुलूसों पे क्यों जाते हो? और जिन बेटियों के बाप मर जाए लोग उनके सरों पे हाथ रखते हैं, उनके मुंह पे तमाचे नहीं मारते। 4 साल की हुसैन की बेटी रो रो के कहती रही और पापा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मुझे। अजरोकम इल्लल्लाह, अजरोकम इल्लल्लाह। खुदा तुम्हारी उठती हुई आवाजों पर रहम फरमाए। बुजुर्गों मैं मुआशरे का दर्द पढ़ रहा हूं, चले जुड़ गए हो ना? एक बात और, आखिरी बात, अल्लाह ना करे किसी बहन का जवान भाई मर जाए, सैयद बादशाह दुआ करना मेरे हाथ में, रोती हुई आंखों से अपनी मुश्किल दुआ दिल में रख। मेरे अल्लाह जितने बैठे हैं इन तमाम की दुआएं, तू समी भी है, तू बसीर भी है, तू देख भी रहा है, तू सुन भी रहा है, इनकी दुआएं कबूल कर लेना। किसी बहन का जवान भाई मर जाए, उसे भी फोन करके ये नहीं बताया जाता तेरा भाई मर गया है, उसे कहते तेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तेरे भाई का खून ज्यादा बह गया है। अब भी पूछते हो रोते क्यों? 7 कदम पे बेटी मिन्नतें करती रही, 70 कदम पे बहन कुरान रख के मिन्नतें करती रही। अजरोकम इल्लल्लाह, अजरोकम इल्लल्लाह। और जब बहन आती है ना भाई की लाश पे, जनाजा हो जाता है, जो दूर के तल्लक वाले होते हैं, मेरे इलाके में मेरे कानून ये है, मेरे इलाके के दूर के रिश्तेदार जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, जो थोड़े उनसे करीब होते हैं कुलखानी के खत्म के बाद चले जाते हैं, जो ज्यादा करीब होते हैं 10वें के खत्म के बाद, 7वीं के खत्म के बाद वो भी चले जाते हैं। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। हर रिश्तेदार चला जाता है, नहीं जाती तो मरने वाले की बहनें नहीं जाती। रो रो के कहती है हम कैसे चली जाएं, और अभी तो हमारे भाई का चेहरा भी नहीं हुआ, और अभी तो हमारे घर उजड़े को दिन कितने हुए हैं। अपने शौहर के सामने हाथ बांध के कहेगी अपनी बहन से कह देना मेरे बच्चों को स्कूल भेज दे, मेरे बच्चों को खाना पका के दे दे, लेकिन मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरे भाई का चेहरा नहीं होगा। तू हमारे रोने पे एतराज करता है, और आज 1400 साल बाद तेरे मुआशरे की एक आब औरत अपने एक भाई की लाश छोड़ के नहीं जाती। रख मेरे सर के ऊपर कुरान, 9 भाइयों की लाश रस्सियों में पहने, 9 भाइयों की लाश से
جزاک اللہ دعا خالق مالک بانی مجلس ملک علی قراب دے عزت وقت اضافہ فرماوے علامہ علی وجہ بروسہ ان کے سامنے ذاکر البیت شہر آل محمد شہنشاہ فضائل شہنشاہ مصائب جناب سید ملازم شیرازی حفصائی والوں خطاب کریں گے انہوں کے بعد ذاکر البیت سید شیوال حیدر نقوی اور گجرہ والا وہ خطاب کریں گے انہوں کے بعد ذاکر البیت جناب غلام عباس گپا افسر گودا اور حرف آخر دی حیثیت جناب ذاکر البیت جناب ملک علی رضا کوکر افسر گودا خطاب کریں گے محمد وآل محمد ذات بلندر صلوات ہم تر سامنے ذاکر البیت شہر آل محمد جناب سید ملازم حسین شیرازی افسائی وال وہ خطاب کریں گے مومنن وی چک ڈبلیو بی بیاڑی جنابوں انہاں گھر دے وچ امام بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں اور انہاں دی مدد کر دیا تاکہ تساں دا حصہ شامل ہو جاوے وی چک بیاڑی جنابوں وی ڈبلیو بی امام بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں انہاں دی امداد کر دیو تاکہ تہاڈا حصہ شامل ہو جائے محمد وآل محمد دی ذات تے بلند تر صلوات پچھلے بندے نہ گے پچھلے بندے نہ پیچھے بیٹھے انہوں نے بلا لگا جو پیچھے بیٹھے اے جڑے مومنین پیچھے بیٹھے برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا کے آ جاؤ تاکہ ماحول بن جائے پچھلے آمن والے پریشانی نہ ہوئے برائے مہربانی نیا حسین قدم قدم کے آ جاؤ تاکہ پچھلے بندے آسانی نال آ جاؤ محمد والے محمد ذات تے بلند تر صلوات ہی پڑھتے ہو تے قدم قدم کے بھی چلتے ہو التماس سے دعا اللہم قل ولی حجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفي كل ساعة من الليل والنهار وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين تسكنوا أرزقا